ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਈ ਜਾਈਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਇਨ ਵਿਚ both equations ax equal to b and ya equal to b have a unique solution is a group for all ab belongs to g। तो देखो स्टेटमेंट की कहती हैगी आ, वो देखते हैं आप। अपन दिता हैगा है फिलहाल रफ काम कर रहे हैं आप, स्टेटमेंट समझ रहे हैं। फिलहाल अपन दिता है कि सैमी ग्रुप दिता है जी अपन, तो होर की दिता है अपन कि ए एक्स इक्वल्स टू बी एंड ए वाई इक्वल्स टू बी, सॉरी वाई ए इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਇਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹੈਵ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੋ ਜੀ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਏ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਐਂਡ ਵਾਈ ਏ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਬੀ ਫॉर ਆਲ ਏ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ ਹੈਵ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਏ ਐਕਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏ ਸਟਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਏ ਸਟਾਰ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਬੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਪਾ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸਟਾਰ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਏ ਬੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਖਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਸਟ ਇਕੱਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 × 3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 6 ਹੁੰਦਾ। ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ 4 × 2 ਕੀਤਾ, ਇਹ 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰ, ਇਹ ਡਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਡਾਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਜਨਰਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਾਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਨਰਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। A ਸਟਾਰ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ A + B + AB ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A.B = A + B + AB। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਟ ਆ, ਇਹ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਨੀਚੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ 2 × 3 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? 2 + 3 + 2 3, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5 6 11 ਆ ਗਿਆ। 2 × 3 6 ਹੁੰਦਾ, 11 ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਰਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਾਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਡਾਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਧਾ A ਵੀ ਲਿਖ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਸ ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਆ, ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ A × X ਜਾਂ AX ਸਿੰਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ? 2x ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ 2 × X, 2 × X। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ AX ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ A × X। ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਥਿਊਰਮ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਊਰਮਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਿਊਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ
तो तुसीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि किहड़ा प्रूफ किवें होऊगा। AX इक्वल्स टू B एंड YA इक्वल टू B फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G हैव यूनीक सोल्यूशन इन G। ਇਹਦਾ मतलब की होगा, एक एग्जाम्पल लैके समझा रहा कि है की है। जिवें आपां ग्रुप लिया सी उहदे विच सीगा 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। तो ये इक्वेशनां किदां ने, मतलब कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। देखियो ध्यान नाल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ कोई दो एलीमेंट लैणे ने, उन्हां सारिਆਂ वास्ते ये इक्वेशनस बनाउणियां ने। बना रहे हैं, चलो 1x इक्वल टू 1 देख लो, अगे 1x इक्वल्स टू ओमेगा, 1x इक्वल्स टू ओमेगा स्केयर। तीन इक्वेशन आ बन गई, 1 लैके मूहरे। अगे जे आप ओमेगा लवांगे, ओमेगा x इक्वल टू 1, ये समझाने वास्ते ही है गल कि मीनिंग की बनया। ओमेगा स्केयर x इक्वल्स टू 1, ओमेगा स्केयर x इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा स्केयर x इक्वल्स टू ओमेगा स्केयर। ये 9 इक्वेशनस बन गई, 9 इक्वेशनस बन गई। ये कॉरसपोंडिंग 9 ये वास्ते बन गई। सारे वास्ते क्या, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, सारे आ गए जी। ये मैं सिर्फ आ इक्वेशनस बनाई। हुण इहदा मतलब की हैगा कि जे इन्हां सारियां इक्वेशन का आंसर यूनीक आ रहा, यूनीक किवें, बाय हिट एंड ट्रायल कढ़ते हैं आप। बाय हिट एंड ट्रायल इहदा आंसर की आऊगा जी 1। तो 1 जिहड़ा हैगा इसनूं सैटिस्फाई कर रहा, तो वो सारे आंसर G च हैगे ने, दिता होया आपां। देखो इहदा आंसर 1 सैटिस्फाई कर रहा, इसनूं G च। इनू कौन सैटिस्फाई करेगा जी, ओमेगा। 1 इंटू ओमेगा, हिट एंड ट्रायल ना कढ़ना अपने, ये भी ओमेगा आ गया, ओमेगा स्केयर आ गया, सैटिस्फाई कर रहा। ये सारे आंसर ये ने, इनू सैटिस्फाई करेगा। देखो ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर क्यों सैटिस्फाई करेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर जोड़ा है ओमेगा क्यूब किया है पहला, वो 1 होंदा, इनू 1 करेगा, इनू ओमेगा करेगा। ये सारे का आंसर इको आ रहा, यूनीक आ रहा। मतलब इन्हां विचों कोई दो आंसर सैटिस्फाई नहीं कर रहे, इको आंसर सैटिस्फाई कर रहे हैं। 1 भी नहीं कर रहा, ओमेगा भी नहीं कर रहा, कला इको आंसर सैटिस्फाई कर रहा। मतलब सारिਆਂ का आंसर निकल रहा, तो यूनीक आ रहा, तो G च आ रहा। ये स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, फॉर ऑल दिता है अपने, ये अपने कढ़ना नहीं, प्रूव नहीं करना, दिता है कि AB G च जोड़े मर्जी ले लो, वो सारे वास्ते कोई भी दो एलीमेंट ले लो, यदा आंसर पक्का की आऊगा, यूनीक आऊगा। ये अपन दिता है, तो आंसर कि आऊगा, G विच आऊगा। ये भी आपां गिवन एवं है। वो आपां प्रूव किवें करांगे, बाद की गल है कि आपां ग्रुप किवें शो करना है। सब तो मेन गल है कि स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट समझ आ गई तो आप अगे चलते हैं। क्यों ये लाइन मैं दोबारा रिपीट कर रहा क्योंकि यही आप ज़्यादा यूज़ करांगे कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, जी आह वाली इक्वेशन हैगी आ, जिन्ने भी आप सारे वास्ते AB सारे वास्ते G के एलीमेंट वास्ते ये भर के आप इक्वेशनस बनावांगे, वो सारिਆਂ का आंसर यूनीक होगा और G विच होगा। यही आपां गिवन आ। सो ये सारा ध्यान से रखते हुए हुण प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं आपां। वे प्रूफ तो हुण प्रूफ भी आपां करांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈप्ਟ ज़्यादा आऊगा वो आइडेंटिटी एलीमेंट ਤੇ यूनिवर्सल आऊगा। तो ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ आइडेंटिटी एलीमेंट सारिਆਂ वास्ते एक ਹੁੰਦਾ, पूरे ग्रुप 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ तो यूनीक प्रूव किया ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। तो ਜਿਹੜਾ इनवर्स एलीमेंट हैगा वो हरेक का अलग अलग होगा, पर जे किसी एक का इनवर्स लवांगे तो यूनीक आऊगा। हरेक का आंसर अलग अलग आऊगा और यूनीक आऊगा। ये अपने इनवर्स वास्ते किया सीगा। ये गल ध्यान च रखांगे, फिर अपन वधिया समझ आ जाएगी थ्योरम। चलो आप ये करते हैं। स्टेटमेंट तो गिवन ही सी, चलो अपन इतों स्टार्ट कर रहे हैं। यही देख लवो जी, अपन गिवन हैगा G भी है ग्रुप, G अपन गिवन नहीं हैगा, तो G जो दिता है अपन G इज़
ਆ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਿਵਨ हैगा वो लिख ਲੈਂਦੇ सारा ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ। एंड AX इक्वल्स टू B कॉमा YA इक्वल्स टू B फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G। हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, ये आपां नूं सारा कुछ गिवन। हुण ये गल ध्यान रखनी है आपां ने, सिंस G इज सैमी ग्रुप, जे सैमी ग्रुप हैगा दैन क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर एंड कॉमा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल्ड्स इन G। ये होल्ड करनी है। अपना काम यही है, एक आइडेंटिटी एलीमेंट लेके आना अपने, एक इनवर्स लैके एलीमेंट लैके आना जी विच। जो दो प्रॉपर्टियां आप आइडेंटिटी भी कढ़ लिया, इनवर्स भी कढ़ लिया, फिर जो सैमी ग्रुप हैगा ये ग्रुप बन जाएगा, तो ग्रुप ही आप प्रूव करना। तो आप आइडेंटिटी एलीमेंट जोड़ा है वो लैके आना। चलो करन लगे आप दिता की होया हैगा कि ये इक्वेशन का फॉर ऑल ए बी जी के हरेक एलीमेंट वास्ते ए बी फॉर ऑल जी दे फॉर ऑल हरेक एलीमेंट वास्ते जोड़ा मर्जी एलीमेंट भर दो सारे वास्ते जिहड़ी आप इक्वेशन बनावांगे उहदा आंसर यूनीक होगा। ये आपां नूं दिता यूनीक भी होगा तो जी विच भी होगा, ये आपां नूं गिवन आ। हुण देखियो ध्यान, देयरफॉर AX इक्वल टू A हैज़ यूनीक सॉल्यूशन इन G। ये ठीक है। देखो दोबारा भी गल कर रहे हैं, इत्थे आपां जिहड़े मर्जी एलीमेंट भर सकते हैं। ये बाद विच देखांगे आपां कि उरे A ते A क्यों भरिया, ये बाद विच देखांगे, बाद विच समझ आ जाएगा आपां नूं। फिलहाल देखो जी दे एलीमेंट ने दोने ए जी विचों ही है। जी दे फॉर ऑल पाया उन्होंने कि कोई भी दो एलीमेंट ले लो, सेम हो डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो ये इक्वेशन बनावांगे, इसका आंसर पक्का की होगा, यूनीक होगा और जी विच आऊगा। ये आपां नूं गिवन। देयरफॉर AX इक्वल टू A हैज़ यूनीक सॉल्यूशन इन जी, ये पक्का होगा। हुण देखो ध्यान ना, फॉर सम A बिलोंग्स टू G, ये कोई एक एलीमेंट लिया आप जी, फॉर सम A बिलोंग्स टू G। क्यों वो दस दें कि एक एलीमेंट सारे वास्ते नहीं लिया, आप कोई एक एलीमेंट कंसीडर किया आपने, ये तुहानूं समझ आ जाएगा किवें। तो यदा आंसर होगा कोई ना कोई पक्का निकलूगा आंसर। तो लैट कर लिया, लैट X इक्वल्स टू E बी द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। ये उपरली इक्वेशन का आप सॉल्यूशन ई कोई भी मान सकते हैं। ई क्यों मनिया, लग ही रहा पता कि ए ई इक्वल टू ए आइडेंटिटी एलीमेंट होंदा। ये ई नूं आप आइडेंटिटी एलीमेंट शो करांगे। हुण जिहड़ी गल समझण वाली हैगी आ, वो ये गल हैगी है कि आ कित्थों पालिया आपने, फॉर सम ए क्यों पाया आपने, फॉर सम ए इक्वल्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी। ये तां पाया हैगा जे आपां ये टर्म ना पाइए, जे थोड़े दिमाग च गल आ रही होवे, ये चीज़ ना पाइए कि AX इक्वल टू A हैज़ यूनीक सॉल्यूशन इन G। तो A की क्या, A कोई भी हो सकता एलीमेंट, इत्थे A कोई भी एलीमेंट, इत्थे कोई एक एलीमेंट। फॉर सम मतलब होंदा कोई एक एलीमेंट लिया अपन A। चलो फिलहाल आप ये छड्ड दिंदे, मान लो जे आप ना लिखीए, फिर आप आ चीज़ देखिए, जे AX इक्वल्स टू A तो यदा सॉल्यूशन सीधा E मान लिया, फिर कोई गलती तो लगनी रही अपन। जे आप इक्वेशन का सीधा आंसर E मान लीए फिर भी सही लग रहा अपन।
पर फिर सही नहीं होना। सही क्यों नहीं होना? जे ए तुसी कोई फिक्स एलीमेंट लओगे, कोई एक एलीमेंट लओगे, फिर तो आप आंसर मान सकते हैं। जे आप ए जनरल एलीमेंट लवांगे, जनरल एलीमेंट होंदा सारे वास्ते, सल्यूशन आप नहीं मान सकते। हजे भी जो गल समझ नहीं आ रही तो पिछली एग्जाम्पल आप ली सी, उत्थों देख के समझा रहे। देखो पिछली एग्जाम्पल आप लिखी सी 1x = 1, एक आ सी, इत्थे पाया सी आपने ओमेगा x = ओमेगा, एक पाया सी आप ओमेगा स्केयर x = ओमेगा स्केयर। इदा आपने 9 इक्वेशनस पाई जी, पहला एग्जाम्पल मैं लिखी सी जी। हुण जे तुसी कहो फॉर ऑल, जे फॉर ऑल कही आप फॉर ऑल का मतलब होंगे जे आप लिखीए कि A बिलोंग्स टू G, सम जिमें उरे पाया कि फॉर सम आ वर्ड ना पाइए, कला A बिलोंग्स टू G पाइए, तो A बिलोंग्स टू G का मतलब की होगा जनरल एलीमेंट। जे A जनरल एलीमेंट हो गया तो सारे वास्ते हो गया। मतलब जे मैं A बिलोंग्स टू G पावां, लैट करा कि A बिलोंग्स टू G है, तो AX = A लीए आप, ਇਹਦਾ मतलब की है कि ए आप जी चो लिया, ए कुछ भी हो सकता, जे ए कुछ भी हो सकता है तो सारे वास्ते हो गया है। जिमें 1 ये अकॉर्डिंग देखिए, ए 1 वास्ते भी हो गया, ए ओमेगा वास्ते भी हो गया, ये ओमेगा स्केयर वास्ते भी हो गया, ये सारे वास्ते हो गया। कि इन्हां सारा का आंसर इको आऊगा जे आप उरे A बिलोंग्स टू G पा दिए। इहदा मतलब की बन गया ये इक्वेशनस काफ़ी सारियां हो गई, क्योंकि A की है जनरल एलीमेंट, सारे एलीमेंट हो गए। A 1 भरांगे, फिर ओमेगा भरांगे, फिर ओमेगा स्केयर भरांगे। ये तो एक एग्जाम्पल ही है कि जे एलीमेंट जिन्ने एलीमेंट होंगे उन्नी इक्वेशन बननगियां। मतलब ये एक इक्वेशन ही है, काफ़ी इक्वेशन है कि वो सारिया इक्वेशन का आंसर इको आऊगा ई। ये तो नहीं गिवन आप उरे तो लग रहा होगा कि उरे 1 सैटिस्फाई कर रहा है, ये 1 सैटिस्फाई कर रहा है, ये 1 सैटिस्फाई कर रहा है। उरे क्यों सैटिस्फाई कर रहा है 1? बिकॉज 1 की है आइडेंटिटी एलीमेंट। उरे आइडेंटिटी एलीमेंट थोड़ी दिता है अपन, उरे अपन आइडेंटिटी एलीमेंट गिवन नहीं है। मतलब गल ये बनती है कि ये इक्वेशनस काफ़ी ने कि दिता है उन्होंने इक्वेशन के कि सारे इक्वेशन का आंसर इको आऊगा, इदा नहीं कहा उन्होंने। जिन्नियां इक्वेशनस बननगियां फॉर ऑल, वो सारी इक्वेशन का आंसर इको आऊगा, पर यह किते गिवन नहीं हैगा, यूनीक आऊगा, पर यह किते गिवन नहीं है कि आंसर सेम होणगे। जिमें मान लो AX = B फॉर ऑल ना पावा, चलो लैट पाता, चलो AB बिलोंग्स टू G पा लिया अपने। इसका मतलब की हो गया कि AB जेड़े मर्जी हो सकते G विच। तो यदा मैं सल्यूशन जे X = सपोज कर लो, मैं A1 सपोज कर लिया सल्यूशन मान लो। यदा सल्यूशन का मीनिंग की बन गया कि ये इक्वेशन बहुत सारियां होणगियां। जे ये इक्वेशन बहुत सारियां होणगियां तो उन्हां सारी इक्वेशन का आंसर इको मान लिया अपने। ये किते गिवन नहीं हैगा, ये तो गिवन आपां दोबारा समझो, ये तो गिवन आपां कि इक्वेशन का आंसर यूनीक आऊगा, पर यह किते गिवन नहीं कि सारी इक्वेशन का आंसर सेम होगा। उरे तो बस ये तो चलो ये उरे आपने सारिया इक्वेशन, बहुत इक्वेशन बननी है, सारिया इक्वेशन का इको आंसर मान लिया, गलत हो गया। सारी इक्वेशन का आंसर इको नहीं होगा, सेम मतलब सेम नहीं होगा। हुण ये इक्वेशन बहुत सारिया ने, जे ये इक्वेशन बहुत सारिया ने आपने यदा आंसर एक मान लिया, बस काफ़ी इक्वेशन का आंसर आप सेम मान लिया, तो कितने गिवन नहीं है अपन, तो ये गलत माना जाऊगा। फिर की करना अपने, ये काफ़ी इक्वेशन नहीं हैगियां, ये ज़्यादा इक्वेशन नहीं हैगियां, ये किवें लिखांगे आप फॉर सम A बिलोंग्स टू G, मतलब आप कोई एक लिया G विचों, ये हो कुछ भी सकता है। मतलब कहने की गल ये है, जिवें एग्जाम्पल ली है, जे इत्थे पा दिए आप फॉर सम A बिलोंग्स टू G, इदा पा दिए ये इक्वेशन क्वेश्चन के, तो मतलब की बन गया इको लैना, जा आ लवांगे, लै कुछ भी सकते हैं आप ए नूं, इको लैनी वैल्यू, जा तो आ लै सकते हैं, जा आ लवांगे, जा आ लवांगे, जा आ लवांगे, एक लैनी है,
चलो मान लो एक लैड़ी एक लैड़ी आ एक आ गई इक्वेशन, मान लो आ एक इक्वेशन आ गई। हुण इहदा आपां आंसर मान नहीं सकते, एक आंसर एक इक्वेशन आ इहदा आंसर पक्का एग्जिस्ट करू दिता होया आपां जे एक इक्वेशन लवांगे उहदा आंसर की होगा, पक्का यूनीक आऊगा आंसर। मैं सोल्यूशन भी हैगा अते यूनीक भी हैगा, तो कोई जे आप एक इक्वेशन मनांगे उहदा आंसर आप सपोज कर ही सकते हैं। इस करके फिर आप ये गल ध्यान रखनी है, यह गल समझने वाले जो समझ आन लग गया तो अपने आप टॉपिक इंटरस्टिंग भी लगेगा तो सॉल्व भी होगा जी। एक बार जो बोलिया है मैं सारा लिखता वहाँ, दोबारा बोल देना है। जे फॉर सम ना पाइए मोटा मोटा, जे फॉर सम ना पाइए आप और तो ये इक्वेशन काफ़ी सारिया हो गई। जे काफ़ी सारिया इक्वेशन हो गई, मान लो 3 इक्वेशन पहला बनिया सी, ये काफ़ी सारी इक्वेशनस हो गई, उन्होंने सारा का आंसर आप एको मान लिया सेम ई, जद कि ये गिवन नहीं है अपन किते। आपने हमेशा गिवन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होंगे, यानी कि जो मर्जी सॉल्व करी जाओ। गिवन की है दिता होया गिवन दे विच कि आंसर तो होगा, पर यह नहीं दिता होया जे कोई एक इक्वेशन मनोगे वह आंसर यूनीक आऊगा। जिन्ने भी इक्वेशन बनावांगे सारे के आंसर की होणगे, यूनीक होणगे, पर यह किते भी गिवन नहीं है कि सारा के आंसर बराबर होणगे, बराबर नहीं कहा उन्होंने। इस करके इतने फॉर सम पाना यह चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर सम मतलब इक्वेशन तो लई आपने, पर यह कोई एक इक्वेशन आ, कोई एक इक्वेशन लई है आपने, ये कुछ भी हो सकता, भरनी आप इक्को वैल्यू है। जे ये एक इक्वेशन हैगी आ तो यदा आंसर आप सपोज कर सकते हैं। हुण यह गल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, जे सोल्यूशन मन्ने आपने तो सैटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज ए ई इक्वल्स टू ए, सोल्यूशन सैटिस्फाई करता होगा। हुण इत्थे पुराने कंसैप्ट जिहड़े पढ़े हुए हैं वो लोड़ पेगी तुहानूं, जिहड़े आपां ये बुक जो स्टार्ट की हैगी। मेन तक कंसैप्ट आप 4 ही पढ़ रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलीमेंट, यूनिवर्सल एलीमेंट। हुण इत्थे तुहाडा पुराना कंसैप्ट लोड़ पेगी कि आइडेंटिटी एलीमेंट की हुंदा, कि आप इनू आइडेंटिटी एलीमेंट कह सकते हैं। राइट आइडेंटिटी, राइट तो कितना मल्टीप्लाई आपने बोलांगे, आप मल्टीप्लाई हैगा तो ऑपरेशन स्टार है, वैसे बोलांगे मल्टीप्लाई, कि इनू आप राइट आइडेंटिटी कह सकते। राइट आइडेंटिटी की होंदी है कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, ये राइट आइडेंटिटी होती है। ये गलत है जी, ये राइट आइडेंटिटी नहीं हैगी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यही राइट आइडेंटिटी है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ए ई इक्वल टू ए आ गया कि आप इनू राइट आइडेंटिटी कह सकते हैं। कि ए बारे देखना पऊगा अपन को, ए की है। ए अपने कोई एक एलीमेंट लिया कि सारे ले ने जनरल मन्ने अपने। हुण ए तो आप कोई एक एलीमेंट लिया जी, उरे आप ऐं तो नहीं पा सकते है कि ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। क्यों? क्योंकि आप पाया स्पैशल इत्थे कि फॉर सम, फिर यदी की लोड़ पई, पाने की लोड़ पई सी, पाने की लोड़ आपां नूं तां पई सीगी जे इक्वेशन एक होगी तो ही आप आंसर मनांगे। बहुत सारी इक्वेशन का आंसर आप सेम नहीं मान सकते है। इस करके फिर ये काम इत्थे ख़त्म नहीं होया अपना, इनू आइडेंटिटी एलीमेंट आप नहीं कह सकते, ये आइडेंटिटी एलीमेंट नहीं है। फिर फॉर ऑल लैके आना अपने, वो किवें लैके आना वो देखना। पहला आप राइट आइडेंटिटी कड्डांगे, अगे चलांगे आप, फिर लैफ्ट होगी, फिर दोनों आपस इक्वल आउणगे। चलो शायद थोड़े तक समझ आ गया होवे, फिर आप अगे चलते हैं। ये तो आगे चलते हैं आप। इस तो बाद ये ऊपर भी रब कर दिए। हुण देखो की कर रहे हैं आप, लेट बी बिलोंग्स टू जी। हुण बी को एलीमेंट ले लिया,
इत्थे फॉर सम नहीं पाया आपने, जिवें उरे पाया सी ना फॉर सम, उरे नहीं पाया आपने। मतलब ये कोई भी एलीमेंट हो सकता, मतलब ये जनरल एलीमेंट आ, ये जनरल एलीमेंट कंसीडर किया आपने। देखियो ध्यान नाल, ए वाई ए इक्वल्स टू बी, कंसीडर किया आपने वाई ए इक्वल्स टू ई। ए की आ एक एलीमेंट आ ते बी की आ फॉर ऑल एलीमेंट्स ने। तो देखते हैं आप की लिखा, दैन बी इंटू ई किता, बी इंटू ई किता आपने, उस तो बाद बी की वैल्यू भरती, वाई ए इंटू ई। देखी जाओ पहला ये किमें लिया देखते हैं आप सारा दिता है सी वैसे अपन वाई ए इक्वल बी, बी ई लिया अपने, क्यों लिया सारा कंसैप्ट आप देखांगे जी। इदा ले लिया कि आप इदा ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सैमी ग्रुप सीगा उहदे च एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का होल्ड करती है। जे ब्रैकेट इंटरचेंज करिए अपन कहने होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। हुण ए की वैल्यू कितनी हैगी अपने को, नंबरिंग मान लै लीए, ये ए बराबर वाई इंटू ए आ गया फ्रॉम 1। इस तो बाद वाई ए कि बराबर है जी बी दे इक्वल, तो दिस इंपलाइज बी ई कि बराबर शो करता अपने बी दे, बी ई बी दे बराबर शो करता अपने। हुण बी की आ कोई भी एलीमेंट, जनरल एलीमेंट तो कोई भी हो सकता, जे कोई भी हो सकता तो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी आप कह सकते हैं, सारे वास्ते हो गए, सारे एलीमेंट हो गए, जनरल मतलब सारे आ गए ये। हुण आप कह सकते हैं कि ई की बन गई अपने को सारे वास्ते, जे राइट तो आप ऑपरेट या मल्टीप्लाई करांगे सेम आ रहा आंसर, तो ई नूं की कहांगे आप राइट आइडेंटिटी। Therefore E is right identity। ये भी तुसीं ना पिछे पा लो, ये सोल्यूशन जिहड़ा हुंदा आपां जी च गिवन है ना आपां इत्थे नाल पा ली पिछे वेयर E बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जिन्ने भी सोल्यूशन ने जी विच आ रहे हैं तो सोल्यूशन जी विच होगा। तो E इज़ राइट आइडेंटिटी है, तो इन जी तो आ पहलां कर ही चुके हैं, फिर लैफ्ट कड्डांगे वो करांगे सॉल्व। चलो हुण आ देखना कि आ चीज़ किवें आ, ये इक्वेशनां किवें बनाईयां आपने, ये काफ़ी इक्वेशन ने। ये इक्वेशनां इदां बनाईयां कि यह एलीमेंट तो तुसीं इक्को मनना, क्योंकि ए आपां की मन्निया हैगा फिक्स एलीमेंट है, सम कुछ भी लै सकते, पर लैना आपां इक्को एलीमेंट आ, ये तो उसी फिक्स मनना हैगा, इनू जो मर्जी मनो। ये इक्वेशनस आप इदां मन्नियां ने, कंसीडर दिस। आप किहड़ा दा आंसर कढ़ना इस केस की, आप इक्वेशनां काफ़ी क्यों मान लिया। उरे तो आप पहला कहा सी, जे पिछे लिखिया सी ना अपने आ पिछे आप लिखिया सीगा कि उरे तो काफ़ी इक्वेशन आप नहीं मन्निया, काफ़ी इक्वेशन आप नहीं मन्ने, इक्को मन्ने सी, उरे तुसीं काफ़ी मान लिया इक्वेशनस। ये इदां क्यों किया, उरे आप ज़्यादा इक्वेशनस तो मन्निया है, बिकॉज उरे किहड़ा आप आंसर कट रहे हैं, ये आंसर तो लिखा मैं कि कि यदा आंसर की आऊगा, आंसर की गल तो की नहीं ना। उरे तो आप आंसर की गल की, जो आंसर की गल की तो अपनी इक्वेशन इक्को चाहिए है, इस करके उरे ज़्यादा इक्वेशन मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। जे तो आप आंसर कटना होंदा फिर प्रॉब्लम आनी सी, आंसर की आउणगे, सारे का आंसर आप सेम नहीं मान सकते, इस करके उरे आंसर कटना सी तो इक्वेशन आप इक्को मन्नी सी। तो फिर लोड़ की पई नहीं इक्वेशन मनने की। तो पहली गल तो आप आज शो करनी सी, तो ही आइडेंटिटी बनूगा राइट आइडेंटिटी, जे फॉर ऑल होगा। तो ये इक्वेशन आप इदा मन्निया कि ये फिक्स एलीमेंट आ, ये काफ़ी एलीमेंट है,
इक्वेशन आप जी मर्जी मान सकते दिता है आपको वाई ए इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये भी जो मर्जी मनो, ये भी जो मर्जी मनो, इक्वेशन आप जिन्नियां मर्जी सपोज कर सकते हैं। फिर आप कहते इक्वेशन मनिया ने यदा जो मर्जी आ सकता एलीमेंट, इनू एक मनिया फिक्स जो आप उरे लिया, जोड़ा आप इत्थे लिया है। सो फिर इनू आपको पता सी, इस तो बाद आपको ध्यान सीगा कि बी ई इक्वल टू बी शो करना। फिर बी ई आपने कंसीडर कर लिया, बी की वैल्यू भरती, एसटीडी प्रॉपर्टी लाती जी आपने, ए ई दिता है आपको ए बराबर आ, फिर इतों करके अपना आंसर आ गया बराबर आ गया फॉर ऑल। तो यह कंसैप्ट ध्यान नाल लिख लियो, नहीं तो भुल जाओगे, कापी च प्रॉपर नोट्स बना लियो। हजे पूरा सॉल्व नहीं होया हैगा, यह राइट आइडेंटिटी बन गई। इस तो अगे आप लैफ्ट आइडेंटिटी कढ़नी है, वो देखियो ध्यान। लैफ्ट आइडेंटिटी बिल्कुल सेम मेरे वर्गा पार्ट ही है, उल्टा पार्ट हो जाएगा थोड़ा जिहा। उल्टा पार्ट किमें हो जाएगा, पहला किमें किया सी मैं थोड़ा ये समझा देवां, इस कंसैप्ट की किया सी आपां राइट आइडेंटिटी दे विच। पहला आपां ए एक्स इक्वल्स टू ए लैके ये कोई एक इक्वेशन बनी सी फॉर सम पा के, एक इक्वेशन लैके ਇਹਦਾ आंसर सपोज किया सी जी। उस तो बाद फिर आपने वाई ए इक्वल टू बी लैके फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी, बी जो मर्जी हो सकता है। फिर आ इक्वेशन लैके आपने आइडेंटिटी एलीमेंट जोड़ा है राइट आइडेंटिटी कड्डी सी, यही कुछ किया सी आप हुण ये वांगू ही है जी आप लैफ्ट कढ़नी है। उरे एक्स आपने सज्जे हथ लिया है, उरे आप लवांगे। इस तो बाद हुण इक्वेशन किहड़े किहड़े गिवन सी आपको स्टेटमेंट्स, एक ए एक्स इक्वल टू बी सी, एक वाई ए इक्वल्स टू बी, आ दो इक्वेशन सीगियां अपने को। हुण आपां की करना की है, ये आपां ए ई इक्वल टू ए बनाया सी पहला, क्योंकि ई की चाहिए आपां राइट आइडेंटिटी, तो राइट वास्ते सज्जे हथ लिया सी आपने। हुण इत्थों स्टार्ट करांगे, कंसीडर वाई ए इक्वल्स टू ए। इक्वेशन क्यों लई है, बिकॉज इसका सल्यूशन मनांगे आप, जो सल्यूशन मनांगे वैसे ही कह रहा मैं ई ले लिया सल्यूशन, फिर ई की बन जाऊगा लैफ्ट आइडेंटिटी। लैफ्ट तो आवे ना अपना, तो ही लैफ्ट आइडेंटिटी शो होगी, राइट वास्ते राइट शो होगी सी। तो ये इक्वेशन लैके राइट आई है, जो लैफ्ट बनानी हैगी तो अपनी इक्वेशन पहला आ लैनी पैनी है। उरे वाई अगे क्यों पाया, वो लग गया पता होगा कि वाई वाली इक्वेशन अगे वाली गिवन अपन, एक्स वाली इक्वेशन पिछे है। बाकी वैसे मैटर भी नहीं करता हैगा, एक्स वाई जो मर्जी पा सकते हैं। तो पहला आ मनांगे आप, उस तो बाद फिर सल्यूशन लैके फिर अगे सॉल्व करांगे। वो करन लगे जी, वो देखो फिर मैं बाकी सारा रब कर देना, लोड़ नहीं हैगी। अगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उस तो बाद कंसीडर की आपने वाई ए इक्वल्स टू ए, ओमी फॉर सम ये हैज़ सल्यूशन, ये सल्यूशन होगा पक्का इन जी, जी दे विच आऊगा फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी। लैट सल्यूशन की मान लिया आपने वाई इक्वल्स टू ई सल्यूशन मान लिया। हुण इत्थे काम गलत हो जाऊगा, गलत क्यों हो गया है, ई नहीं मान सकते आप। पहला आपने ए एक्स इक्वल टू ए का आंसर ई मान चुके हैं। आपन स्टेटमेंट्स कितने गिवन है कि इन्हों दोनों इक्वेशन का आंसर सेम होणगे, आ सेम होणगे। इक्वेशन दे विच स्टेटमेंट दे विच आपन सिर्फ ये चीज़ गिवन आ कि इसका आंसर पक्का निकलेगा तो यूनीक होगा, इसका आंसर पक्का निकलेगा यूनीक होगा। आपस आंसर नहीं पता सेम होणगे कि नहीं होणगे, ये गिवन नहीं किते आपां नूं हैगा। तो और एक होर वड्डी प्रॉब्लम आ गई कि ई नहीं मान सकते आप सल्यूशन, फिर कोई होर मनना पैना। तो कोई होर सल्यूशन की ले लिया आपने, एफ मान लिया, बी इट्स
ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਵਾਈ ਐਫ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਜੀ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀ 'ਚ ਆਊਗਾ। और यूनीक वर्ड पाई लो, चलो दिता है अपन। इस तो बाद उमें सैटिस्फाई करावांगे। फिर प्रॉब्लम आ जी, प्रॉब्लम क्यों हैगी आ, फॉर ऑल नहीं कह सकते हैगे आपां उरे, क्योंकि मन्निया तो आपां कोई एक एलीमेंट आ जी, इस करके फिर इहदे विच आइडेंटिटी लैफ्ट आइडेंटिटी नहीं बनया। फिर आप इक्वेशन कंसीडर करांगे, लैट बी बिलोंग्स टू जी, बी कोई जी विचों लिया आपने, किवें इक्वेशन किहड़ी लई आपने ए एक्स इक्वल्स टू बी, दूजी इक्वेशन पहला वांगू ही सारा। फिर आप कंसीडर किया जी, कंसीडर किया आपने एफ बी, इनू बी दे कोल लैके आना, फिर एफ की बन जाएगा अपने को लैफ्ट आइडेंटिटी। तो एफ बी लिया पहला आपने, उरे बी की वैल्यू भरती, ए एक्स ये ब्रैकेटा आप आपस दे विच इंटरचेंज करतियाँ, लिख चुके पहला जो लिखी लो। चलो ये की है अपने को एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। हुण एफ ए किहदे बराबर आ जी, ए बराबर आ ए एक्स आ गया, ए एक्स की मन्निया सी आपने बी। हुण आप कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ बी इक्वल्स टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर एफ इज़ लेफ्ट आइडेंटिटी इन जी। ये लेफ्ट आइडेंटिटी बन गई जी। हुण ये प्रॉब्लम फिर अपनी उत्थे खड़ी हैगी है। आइडेंटिटी एलीमेंट अपन पता ग्रुप दे विच लैफ्ट आइडेंटिटी एलीमेंट तो राइट आइडेंटिटी एलीमेंट सेम होंदे ने, अलग नहीं होंदे हैं। फिर हजे आइडेंटिटी एलीमेंट नहीं निकलिया, क्यों नहीं निकलिया अपना, कोई लैफ्ट आप ई मन्निया है, तो लैफ्ट आप एफ आया अपना, तो राइट आप ई मन्निया, दोनों आप इक्वल शो करांगे, फिर अपना प्रॉपर होगा कि आइडेंटिटी एलीमेंट जी दे विच एग्जिस्ट कर गया। हुण आप ई ते एफ किवें बराबर शो करने हैं, देखो सिंस ई नूं की शो किया कि ई इज़ राइट आइडेंटिटी इन जी। राइट आइडेंटिटी की होंदी है कि जी दे हरेक एलीमेंट नूं जे आपां राइट तो मल्टीप्लाई कह लो, चाहे ऑपरेट कह लो, मल्टीप्लाई बोलांगे आपां। जे राइट तो मल्टीप्लाई करांगे, राइट आइडेंटिटी है जी, तो आंसर की आऊगा, पक्का सेम आऊगा। एफ जी का एलीमेंट आ, इनू आप नंबरिंग 3 पा लो। आलसो एफ इज़ लैफ्ट आइडेंटिटी इन जी। लैफ्ट आइडेंटिटी है, मतलब की है लैफ्ट तो किसी भी एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर की आऊगा, आही आऊगा सेम। लैफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों दी आपस। देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 E equals to F। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। आइडेंटिटी एलीमेंट जी विच एग्जिस्ट कर गया। ये थोड़ा ध्यान ना देख लो कंसैप्ट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो जी। हुण आपां इनवर्स एलीमेंट देखना आप इस तो बाद। आइडेंटिटी एलीमेंट तो आप एग्जिस्ट करवा लिया जी। हुण आपां इनवर्स एलीमेंट करांगे, तो इनवर्स एलीमेंट भी जे एग्जिस्ट कर गया फिर ये ग्रुप बन जाएगा। तो देखिए आप इनवर्स एलीमेंट लैट कर लिया आपने कि ए बिलोंग्स टू जी है।
ए अपने कोई जी च ले लिया एलीमेंट, कंसीडर की अपने AX इक्वल्स टू E, ये इक्वेशन दी है। इक्वेशन मननी कि मैं लग गया होगा पता कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਇਨਵਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਈਟ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ B ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਰੇ A ਡੈਸ਼ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ A ਡੈਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ, E ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਇਨਵਰਸ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫॉर ਸਮ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫॉर ਸਮ therefore x equals to, let x equal to A dash be its solution। ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ, E ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ A ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। therefore A dash equals to E। ਉਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ A ਸਟਾਰ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ E ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਸਟਾਰ A, ਤਾਂ B ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਸਟਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ AB ਪਾ ਲੈਣਾ, AB ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ E ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ B ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਫॉर ਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ, ਇਹ ਫॉर ਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ ਇਨਵਰਸ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ B ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ B G 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਫॉर ਆਲ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ A G 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ G 'ਚ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ G 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਫॉर ਆਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਫॉर ਆਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਨਵਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ AE ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ E ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ E ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ। E ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਫॉर ਆਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ therefore A ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, A ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਨਵਰਸ ਆਫ A। ਬਾਕੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਆਊਗਾ ਅਲੱਗ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇਨਵਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫॉर ਆਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਇਨਵਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਇਨਵਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਰਾਈਟ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸੋਰੀ ਰਾਈਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਸੀਡਰ y A ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A, ਫॉर ਸਮ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ,
तो लैट कर लिया y इक्वल टू a डबल डैश b इट्स सल्यूशन। इत्थे पा लिया आप a डैश भी g च सल्यूशन g विच ते a डबल डैश भी g दे विच सल्यूशन सैटिस्फाई करेगा। तो इत्थे आप कह सकते हैं कि देयरफॉर a डबल डैश की बन गया अपने को इज़ लैफ्ट इनवर्स ऑफ ए। उम्मीद है तुहानूं गल ये समझ आ रही होगी। हुण लैफ्ट राइट इनवर्स भी निकलिया लैफ्ट इनवर्स भी निकलिया हजे अपना आंसर उवें पहला वांगू नहीं आया जो पहला किया सी अपन पता कि किसी एक एलीमेंट का इनवर्स निकल रहा है चाहे लैफ्ट आ चाहे राइट आ वो यूनीक होंगे एको होंगे ऐ नहीं कि लैफ्ट कुछ होर आऊगा राइट कुछ होर आऊगा। जी पहला आप आइडेंटिटियाँ बराबर शो कीतियां सी उवें आप ये भी इनवर्सिज भी दोनों आप बराबर शो करांगे। ये आप इधर कर लें चलो कंसीडर किया आपने पहला ए डैश लेना ए डैश नूं आपने ए दे इक्वल शो करना। जो ए डैश लिया ए डैश नूं आप लिख सकते हैं ए डैश इंटू इत्थे ई पा लो। हुण ई आपां ये देख के चलना काम सारा मान लो ए डैश आ ई नूं तां आपां शो कर चुके हैं कि राइट आइडेंटिटी भी हैगी आ ये शो कर चुके हैं राइट तो मल्टीप्लाई करांगे तां भी सेम आऊगा ये लैफ्ट भी तो हैगी शो कर चुके हैं पहला आपां जिधरों मर्जी कर सकते हुण दिमाग लाना किधरों फायदा रहूगा आपां तो आपको इतों ई लिया लैफ्ट वाले पासे पा रहे इधरों फायदा रहूगा ये समझ आ जाऊ क्यों किया आपने फिर ई की वैल्यू भरती जी ए डबल डैश लैके आना आपने जे ए डैश नूं आपां ए डबल डैश के बराबर करना इक्वल करना तो ये ए डबल डैश लैके आना पऊगा तो ही इक्वल होएगा। हुण ए डबल डैश इत्थों निकलेगा नंबरिंग 5 पा लो मतलब ई की वैल्यू भरती ए डबल डैश ए डैश यूजिंग 5 ये वैल्यू भरती अपनी हुण लग गया होगा पता क्यों कर रहे हैं आप इदा। फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ब्रैकेट आपां ने इंटरचेंज करती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनू फिर हुण नंबरिंग 6 पा लो चलो ये वैल्यू दी हुई आपां नूं ई बराबर ये आइडेंटिटी एलीमेंट होंदा हैगा ये ए डबल डैश आ देयरफॉर इनवर्स एलीमेंट ये लाइन देखियो ध्यान ये लाइन ध्यान ना देखियो जी इनवर्स एलीमेंट ऑफ एवरी एलीमेंट एग्जिस्ट इन जी एग्जिस्ट इन जी। चलो ये लाइन पढ़ते हैं आप की है बात की गल पहला देखिए हुण इस लग जाना ये शायद कई समझ आ रहा हो ई आप लैफ्ट वाले पासे क्यों पाया जे आप ई राइट वाले पासे पा लेंगे तो कुछ नहीं बनना सी देखो पा लिया इन रब कर लेने आप ये पाया अपने ये वैल्यू भरती जी ई की डबल डैश लैके आना ए डैश ए डबल डैश ए इसका कोई फायदा नहीं इसका कोई फायदा नहीं होना नहीं क्यों फिर ये दो इकट्ठे करांगे आप एलीमेंट्स आप अगे पिछे नहीं कर सकते अगे पिछे क्यों नहीं कर सकते बिकॉज कमोडिटी प्रॉपर्टी नाल अगे पिछे होंदा कमोडिटी प्रॉपर्टी का होल्ड नहीं करती हैगी गिवन नहीं है अपन इस करके आप ये एलीमेंट इदा ही रहणगे ब्रैकेट आप इंटरचेंज कर देवांगे तो ए डैश इंटू ए डबल डैश की कोई वैल्यू पता नहीं हैगी इत्थे काम अपना अड़ जाएगा अगे नहीं जाऊगी तो ही आप उधरले पासे लिया करना। चलो हुण ये गल समझाउणी हैगी आ जे किसी दिमाग दे विच ये प्रॉब्लम आ रही होवे कि उरे एवरी एलीमेंट क्यों पाता इत्थे दा आपां कहा सी कि कोई फॉर सम एलीमेंट ये तो एक एलीमेंट का इनवर्स नहीं कढ़िया आपां ने कल्ला ए का इनवर्स कढ़िया उरे आपां ने कोई सम ए लिया कोई एक एलीमेंट लिया तो वह आपां ने इनवर्स कढ़ता इनवर्स आपां ने कढ़ता तो इदा नहीं होना सी इनवर्स एलीमेंट ऑफ ए एग्जिस्टिंग जी पर उरे तो कह रहे हैं कि इनवर्स एलीमेंट ऑफ एवरी एलीमेंट ये सारे वास्ते क्यों हो गया इनवर्स आ गया
ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫॉर सम, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਆ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇੱਕੋ ਮੰਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫॉर सम ਕਿ A ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਕਰਨੀ। A ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ A ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੈਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਫॉर सम A। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, G ਸੈੱਟ ਸੀ 1 ਓਮੇਗਾ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਓਮੇਗਾ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ 1x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਓਮੇਗਾ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਆ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ E1 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫॉर सम ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ A, ਪਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਲੈ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਆਹ ਲੈ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਆਹ ਲੈ ਲਵੋ, ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर सम, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਪਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਓਮੇਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫॉर सम ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੇ ਓਮੇਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ। ਜੇ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇਨਵਰਸ ਆਇਆ, ਓਮੇਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਵਰਸ ਆਊਗਾ, ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਵਰਸ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫॉर ਐਵਰੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥਿਊਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਾਫੀ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।